अस्सलाम वालेकुम अबाबिल वन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स दिस इज़ डे 6। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। काइंडली मुझे प्लीज़ बताएं कि आपको जो वॉल्यूम है वो क्लियर है एंड यू कैन सी द स्क्रीन एज वेल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड आई होप कि आपका वीकेंड जो है वो बिल्कुल ठीक गुजरा है। सो please let me know that everybody is fine. Okay, that's great. Thank you, Mr. Bilal and Mr. Huzafa. Right. So let's continue. Oh, um, आज मैंने आपको एक वीडियो दिखानी है। इसके लिए मैं एक मिनट अपना जो साउंड सिस्टम है वो ऑन कर लूँ। उसका सेटिंग वॉल्यूम जो है शेयर साउंड। So I'm going to start this session with a video. This video is basically about, of course, English language and how you can improve it. So I'm just going to play the video and please let me know कि जो वॉल्यूम है वीडियो की जो आवाज है वो आपको क्लियर आ रही है। मैं अभी प्ले करने लगी हूँ, आपने मुझे बताना है। एंड विद रिस्पेक्ट टू योर असाइनमेंट्स, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, ऑफ कोर्स दे विल बी चेक्ड। आई विल बी चेकिंग योर असाइनमेंट्स। कुछ डिले आ जाता है बिकॉज ऑफ द schedule that I have, otherwise इंशाल्लाह gradually सब assignments चेक होंगी और आपको रिस्पॉन्स मिलता जाएगा। ओके, मैं वीडियो प्ले करने लगी हूँ। प्लीज मुझे बताएं कि आपको आवाज आ रही है। I want to show you the best way to learn English. Is it clear? ओके, थैंक यू फॉर द आंसर। ये आप वीडियो देखेंगे और इसमें आपने ये व्हाट्सएप में वीडियो नहीं आएगी, आप रिकॉर्डिंग में इसको दोबारा देखेंगे और इसमें जो टिप्स ये आपको दे रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए वो आपने अप्लाई करना स्टार्ट करना है इन योर डेली रूटीन। जनरली इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए यही पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। आगे इससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ है, बट इस वीडियो को आप स्पेसिफिकली रिपीटेडली देखेंगे। The best way to learn English. Talk to yourself. Don't translate into English from your own language. Think in English to improve your fluency. You will find words easier to remember if you try to remember an example sentence using that word rather the word on its own. Be confident. Don't be afraid to make mistakes. The best way to learn is through speaking. Surround yourself in English. Put yourself in an all-English speaking environment where you can learn passively. Establish a routine. Make yourself a study plan. Decide how much time a week you are going to spend studying and stick to it. Tell your family and friends about your study plan. Get them to push you to study and also don't let them interrupt you. When you learn a new word, think of all its other forms. For example, adjective. Beautiful, noun, beauty, adverb. Beautifully. Practice the 4 core skills, improving your writing, reading and listening skills. Keep a notebook of new words you learn. Plan to take a test. You'll find that you work harder when you need to study for something. Children's books have easier words and are a good alternative to graded readers. Use English whenever you can. It's as simple as that. The most natural way to learn grammar is through talking. Procrastination can stop you from being successful. To stop procrastinating, it's important you understand if your procrastinating is to avoid studying, or if it is your bad habit.
If your English is still basic or lower intermediate, then don't try to read the New York Times yet. It will only discourage you. Instead, look at resources such as VOA Special English News, where you can listen to news stories in clear, slow English. If you're an intermediate English speaker, reading children's storybooks or Wikipedia in simple English might make you feel confident if you understand every word. Why not start an online blog and share your writings with the world? Sing your heart out. Show the world your beautiful voice. Learn English songs and sing along with them to improve fluency and intonation. Anyone for karaoke? Get a pen friend or use chat rooms, forums, and community sites. If you can't speak to someone in English, this is the next best thing. Make sure everything you do in your English studies brings you closer to your goal. If your goal is to talk with native English speakers about films, then watch English films. If you want to pass an English exam so you can study abroad, get a tutor who's qualified to prepare you for that exam. Nobody likes to hear their own voice, but be brave and try it. Record your voice and listen to your pronunciation and intonation. It will help you to identify your problem areas. Ask your helpful teacher if you can record his lesson. This is a great way to review. You can also listen to your teacher's speaking speed and intonation. Find English resources that match your goal. Make sure everything you do in your English studies brings you closer to your goal. Carry cue cards with you. These are small cards which you can write new words on. You can pull them out and look at them whenever you have a free minute. Use post-it notes and stick them around your home. You can use them to label things. Stick one on your pet dog. Be the person to start conversations in English. Try to keep the conversations moving and use listening words. Really? Go on. What happened then? Don't wait for others to speak to you. Get in there. Make use of the internet. It's full of resources to help you learn. Enjoy it. We learn more when we are having fun. Review. Make sure that you take the time to review things you have studied in the past. Don't give up. Stay positive. Sometimes you will feel that you aren't learning quickly enough. Everyone feels like this. Don't worry about it. You will get there in the end. Okay, so I hope that you've picked the points that are important in order to improve your language. इसमें आपको basically language से related जो बता रहे हैं, आप इसको बाद में recording इसकी देख लेंगे. You have to stay confident. You have to you don't have to give up. This is something that is very important, क्योंकि देखिए English language जो है आपको हम ये आप अगर reality और being mature, you are all grown ups, आपको इस बात का पता है कि कोई भी चीज कोई भी आप काम करते हैं वो एक दिन में आप achieve नहीं करते. You have to work hard towards it. अब ये जो different
पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। इंग्लिश इज समथिंग दैट वी आर नेचुरली अफ्रेड ऑफ, एंड इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट, अगर आप कोई डिफिकल्ट, जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ये एक बहुत डिफिकल्ट न्यूज़पेपर है जिसमें जो स्ट्रक्चर्स और एक्सप्रेशंस और वोकैबुलरी यूज होती है वो बहुत टफ है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स से स्टार्ट करें, तो आप आज ही और इसी वक्त ही ये लैंग्वेज कोर्स भी छोड़ देंगे और आप इंग्लिश लैंग्वेज से दूर भाग जाएंगे, बिकॉज दिस हैपन्स विद एवरी ह्यूमन बीइंग। हमने इसीलिए आपसे मैंने इनिशियली भी कहा है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, स्टार्ट फ्रॉम सिंपल। डेली अगर आप 5 मिनट्स देंगे, जिस तरह वो कहते हैं, आई डोंट नो ये कि कतरा कतरा मिलके जो है वो समंदर बनता है। सो आप अगर थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, सो इन द एंड देयर वुड बी अ टाइम वेयर यू विल हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज जिस पे आपका कमांड हो। सो आप ग्रेजुअली वन बाय वन स्टार्ट करें, उस कंटेंट से और उस स्किल से स्टार्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप आज राइटिंग करना चाहते हैं तो आप राइटिंग करें, अगर किसी दिन आप स्पीकिंग को टाइम देना चाह रहे हैं, अपनी कोई वॉइस में कुछ रिकॉर्ड कर लें, अगर आप कोई कंटेंट रीड करना चाह रहे हैं, द कंटेंट शुड बी दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। वो टॉपिक्स पिक करें जो आपको एंजॉय करते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको नेचर में इंटरेस्ट है, अगर आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, इफ you are a mother and you want to read about parenting, which is something normal. I'm a mother, so I do read content related to parenting so that I can practice it with regard to my kids. So this is something normal. जो practically भी topics आपको help out करें, technology में आपका interest है, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। गैजेट्स में इंटरेस्ट होता है बॉयज का, बाइक्स में इंटरेस्ट होता है, कार्स में इंटरेस्ट होता है, इवन गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, देयर आर मेनी गर्ल्स। सो इट इज ऑफ कोर्स, यहाँ पे कोई जेंडर से रिलेटेड बात नहीं हो रही। सो वट एवर टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड इन, जस्ट गो फॉर दैट एंड लिसन टू इंग्लिश एवरी डे। लिसनिंग जो है वो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में सबसे ज्यादा हेल्प आउट करेगा। सो इफ यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू हैव टू टेक दीज स्टेप्स। vocabulary learn करनी है, उसके लिए आप dictionary is something boring, so what you can do is still you have to look into dictionary in order to learn spellings as a beginner, and you have to use vocabulary, synonyms, antonyms देखने होते हैं, so you have to make a habit। और आपको मैंने इंटरेस्टिंग डिक्शनरीज के नेम बताए हैं जो बोरिंग भी नहीं है, जिसमें आपको डिफरेंट वोकैबुलरी मिलती है। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इस वीडियो में बात हुई है कि आप इंग्लिश लर्निंग एंड जो एक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट है उसमें जो है पार्टिसिपेट करें। हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट जो है वो नहीं है। आप इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट इस तरह डेवलप कर सकते हैं या इस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि आप इंग्लिश को सुनना शुरू करें। एंड उन्होंने कहा है कि पैसिवली आप सुने। पैसिव मीन्स दैट यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, यू आर लिसनिंग टू इंग्लिश। इंग्लिश विल बी एब्जॉर्ब्ड इन योर ब्रेन, एंड व्हेन यू विल एब्जॉर्ब इट, देन यू विल बी एबल टू आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी लैंग्वेज अनकॉन्शियसली एब्जॉर्ब हो गई है वो आउटपुट होना शुरू हो जाता है, उसको आप रिटन फॉर्म में और स्पीकिंग में यूज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं लर्न कर रहे, आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव है, वो कैच कर रहा है इंग्लिश को। Improve listening in order to be a better speaker. If you have to write well, you have to read. If you have to be a good speaker, you have to listen to English. Practice करें pronunciation को ऊंचा बोल के। आपको अपनी आवाज आनी चाहिए और फिर आपने उसको नेटिव स्पीकर के साथ कंपेयर करना है। लिसनिंग स्क्रिप्ट्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी, ऑडियो नोट्स, उनको सुन के रिपीट करने का पर्पस ये है कि आपको प्रोनाउंसिएशन का आइडिया होता है कि आपने प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव करनी है। आपको पता चलता है कि हाई एंड लो पिच कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है वर्ड्स पे, कहाँ पे अनस्ट्रेस आ रहा है, कहाँ पे किस तरह की वोकैबुलरी यूज करनी है, किस सिचुएशन में कौन से स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं और उसको बोला कैसे जाता है। फिर आप उसको रिपीट करते हैं तो आप कंपेयर करते हैं कि आपको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। परफेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स कोई नहीं होते। आई एम नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। यू जस्ट हैव टू स्पीक, रीड, राइट एंड लिसन टू सच एन एक्सटेंट, उस पॉइंट तक आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कि जिसके साथ आप इंग्लिश में बात करें, आपका मैसेज इजीली और क्लियरली कन्वे हो जाए और आप कॉन्फिडेंट इंग्लिश लैंग्वेज यूजर्स बन जाए। दिस इज व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन। इंटोनेशन जो है वो हाई एंड लो पिच होती है कि आप बोलते हैं समवेयर आपने कुछ वर्ड्स पे आपने स्ट्रेस देना होता है, कुछ पे अनस्ट्रेस, कुछ पे आपकी जोर ज्यादा होता है, कुछ पे कम जोर होता है, कुछ वर्ड्स पे उस पे हाई और लो पिच हो जाती है। पॉजेज, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आप बोल के कर रहे हैं,
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी दरमियान में जो साइलेंट होती है। अब वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको पॉज का बताऊं कि वर्बल पॉजेस कैसे होते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल पॉजेस दोनों का रीजन होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर प्रेपरेशन नहीं हुई हुई और आप एकदम से बोलना शुरू हो गए, या एकदम से आपने वो इसको कहते हैं एक्सटेम्परी, व्हेन यू स्पीक विदाउट प्रेपरेशन, एक्सटेम्परी, यू कैन इवन सर्च ऑन इट। ये होता है स्पॉन्टेनियस। ये कुछ लोगों के अंदर क्वालिटी होती है कि वो स्पॉन्टेनियस जो है स्पॉन्टेनियसली बोल लेते हैं विदाउट प्रायर प्रेपरेशन, कोई तैयारी किए बगैर आप ऑन द स्पॉट जो बोल लेते हैं वो होता है एक्सटेम्परी। लेकिन ये एक डिफरेंट है, ये तो एक आपकी आर्ट है या क्वालिटी है। जो वर्बल पॉजेज होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ कंफ्यूज्ड हूँ या मैं डरी हुई हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी कोई तैयारी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? प्लीज मेरी बात सुने। ओके, वेल दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ओके, राइट। ये जो आप ये जो मैं इस तरह साउंड्स निकाल रही हूँ, ये आपके वर्बल पॉजेज हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या बोलना है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे शायद स्क्रीन फेस करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं डर रही हूँ बहुत ज्यादा। अगर आपने फेस टू फेस किसी से बात करना है तो ऑडियंस में बात करना इज सो डिफिकल्ट, सो नेचुरली उसमें जो है वो आपके पॉजेज आ जाते हैं। विद प्रैक्टिस यू कैन टेक कमांड। नॉन वर्बल पॉजेज में क्या होता है? नॉन वर्बल साइलेंट। तो मैं बोल रही हूँ और बोलते बोलते आई एम साइलेंट, क्योंकि मेरा जो सांस है वो खौफ से या तो बंद हो चुका है बिल्कुल, और मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है, या फिर आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, प्रोबेबली आई प्रिपेयर्ड, बट जब मैंने फेस किया ऑडियंस को तो जो है मेरा सारा कॉन्फिडेंस फेल हो गया है। ऑल ऑफ दिस कैन बी अचीव्ड बिकॉज, अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, बीइंग अ स्टूडेंट, the first time when I at college level, when I had to face the class for the first time to give a presentation, ये मैं आपको एक fact reality अपने बारे में बता रही हूँ। I came in front of the whole class and I was blank. I remember this. और मैंने एक इंग्लिश में ही ऑफ कोर्स अपनी एक इंग्लिश लिटरेचर की प्रेजेंटेशन देनी थी, एंड आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक। और मुझे टीचर ने कहा कि आप जो है यू हैव टू स्पीक ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक। तो मैंने बोलना शुरू किया और मैंने तेज मैंने जो 4-5 सेंटेंसेस बोलने थे वो मैं बोले, and I just ran back to my seat. So this is something that I was, and with practice, with listening to English आती थी, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है ऑडियंस को फेस करने का, एंड जब बोलने के लिए आए तो जो इंग्लिश आती थी वो भी भूल गई। सो दिस इज समथिंग दैट इज अ ह्यूमन नेचर। आपने एवरी ह्यूमन बीइंग, अगर मैं आज आपके सामने कंटिन्यूअसली इफ आई स्पीक इन इंग्लिश एंड आई एम नॉट मेकिंग एनी पॉजेस and I am confident and I can face you and I can answer your questions right on the spot, उसका रीजन ये है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मैंने ऑडियंस को फेस किया है। I had so much fear, I never wanted to face the audience, and the only factor that made me do it was because I know that I had to do it, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, this is the only option, I have to face the audience and I have to achieve my goal, मैंने अपने खौफ पे काबू पाना है, so I just did it. And now if I have to speak in front of anyone, I can do it. I still feel afraid sometimes, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन एक नेचर है, इसको आपने कंट्रोल करना होता है। मैंने अपनी एग्जांपल आपको इसलिए दी है ताकि आप पर्सनलाइज कर सकें कि सब जो है वो मेहनत करके और स्ट्रगल करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो ग्रो योर ग्रामर, जो हम ग्रामर स्टडी कर रहे हैं उसमें जो है आपने ये देखना है कि ग्रामर में आपको बेसिक जो रूल्स हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के वो आने चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के जो बेसिक रूल्स जब आपको आएंगे तो उससे आपको आइडिया होगा कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करनी है, राइट। लेट्स मूव ऑन। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है कि अगर आप अपना काम डिले करके अगले दिन पे डाल दें, टू डिले योर वर्क फॉर टुमारो। आज हम असाइनमेंट नहीं करते, चलें कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो कोर्स चल रहा है, अभी तो शुरू हुआ है कोर्स, कम ऑन, कोई बात नहीं। सो लेट्स प्रोक्रास्टिनेट। if you're going to procrastinate and if you're going to put today's work tomorrow, फिर कल भी आपको काम नहीं करेंगे, because this is also natural कि चलें कोई बात नहीं कल नहीं, अच्छा मैं आज तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, कोई बात नहीं कल करूँगी, मैं एक मूवी देखनी है वो मैं देख लूँ, चलें
शाम को करूँगी या शाम को करूँगा, और मैंने तो अभी फ्रेंड्स को मिलने जाना है, मेरी गैदरिंग है, सो ठीक है कर लेंगे। ये अगर आप करेंगे तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू हैव टू प्लान योर डे, यू हैव टू मेक अ स्केड्यूल, थिंक हाउ यू हैव टू डू इट, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसमें स्लो इजी इंग्लिश होती है, वो सुनना शुरू करें। बी कॉन्फिडेंट, चिल्ड्रन स्टोरी बुक जो है वो इज अ गुड वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, क्योंकि उसमें सिंपल इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी और सेंटेंसेस होते हैं। वोकैबुलरी में वैरायटी होती है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज होते हैं, आपको पता चलता है कि कैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। मैं आपके साथ इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और जो लेवल्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ बुक्स के नाम शेयर करूंगी आपके ग्रुप में, एंड यू कैन स्टार्ट रीडिंग दैट। मुझे आपने रिमाइंडर देना है कि प्लीज बुक नेम्स जो हैं वो शेयर कर दें। न्यूयॉर्क टाइम्स, अ बिग नो, डोंट गो फॉर दिस। अगर आप इंग्लिश से भागना चाहते हैं तो फिर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ सकते हैं। ये 3 डिक्शनरीज हैं, दे आर अवेलेबल ऑन गूगल। आई थिंक मैंने आपको अगर पहले बताया है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, हिप्पो फॉर न्यू वर्ड्स, मैकमिलन एंड यू डिक्शनरी। जो ये रेड में है हाईलाइट हुई हुई है, मैं आपको रिपीटेडली नेम्स बताती रहूँ। स्टार्ट यूजिंग दिस डिक्शनरी हिप्पो फॉर न्यू वर्ड्स बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। इसमें आप एक वर्ड राइट करते हैं, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्म, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंसेस, एग्जांपल्स आ जाती हैं, और जो आगे लिस्ट आती है वर्ड्स की, उनको आप फर्दर क्लिक करके आगे और वर्ड्स भी ओपन कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे ये डिक्शनरी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। सो यू कैन गो फॉर दिस, अदरवाइज इनमें से कोई भी आप डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। प्लीज थिंक कि क्या ये आपके माइंड में हो रहा है। आर यू थिंकिंग इन इंग्लिश? If you want to speak in English, if you want to write in English, you have to prepare yourself to speak in English. Oh, sorry. You have to prepare yourself to think in English. हम नॉर्मली अपनी जो लोकल या नेशनल लैंग्वेज होती है उसमें सोचते हैं, फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। दिस टेक्स टाइम एंड दिस विल नॉट easily help you in learning English. आप उर्दू में सोच लें, इंग्लिश में ठीक है उसको ट्रांसलेट कर लें, लेकिन आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें फ्रॉम सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ्रूट खाना है और आपके सामने पड़ा हुआ है सेब और अंगूर, ठीक है, एंड यू वांट टू ईट इट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं सेब और अंगूर खाने लगी हूँ या खाने लगा हूँ, व्हाई डोंट यू थिंक, ये मैं थिंकिंग की आपकी बात कर रही हूँ, दैट नाउ आई एम गोइंग टू ईट एप्पल्स एंड ग्रेप्स। तो एप्पल और ग्रेप को इंग्लिश उर्दू में सोचने की बजाय इंग्लिश में सोचना शुरू करें। मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि सिंपल डे टू डे चीजों को इंग्लिश में सोचना शुरू करें, फिर सिंपल से टुवर्ड्स डिफिकल्ट जाएं। सो इंग्लिश इज कमिंग आफ्टर अस लाइक अ मॉन्स्टर। ये जो यहाँ पे एक मॉन्स्टर बना हुआ है और मैं भी भाग रही हूँ और आप सब भाग रहे हैं, और इंग्लिश जो है वो कह रही है कि हम तो आ रहे हैं आपके पीछे। इसलिए इंग्लिश हमारे पीछे आ रही है क्योंकि इंग्लिश इज द नीड ऑफ टाइम। नाउ यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। If you want to survive, of course there are many who are surviving without English, but if you want to find more opportunities, if you want to move on, if you want to explore the world, then you should learn English. Parts of speech मैं आपको noun के बारे में already पहले बता चुकी हूँ, लेकिन ये जो introduction थी इसकी, ये मैंने आपको पहले नहीं दी थी। So noun जो है उसको basically एक naming word कहते हैं। Naming word का मतलब होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल या फीलिंग का नाम नाउन होता है। इसमें हर चीज आ जाती है, एवरीथिंग अराउंड यू, जस्ट लुक एट एवरीथिंग अराउंड यू एंड एवरीथिंग इज अ नाउन। सो नाउन इज एवरी नेम ऑफ अ थिंग। अली, पाकिस्तान, country, love, hatred, anger, all feelings, animals, things, place, person, everything comes in the category of noun. ये टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं जिनमें से मैं आपको कुछ करवा चुकी हूँ, कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल। सो वी आर गोइंग टू डू दीज जो हम प्रीवियस कर चुके हैं। अगर उसमें आपको कोई क्वेश्चन है, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट हम कर चुके हैं पहले, सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क दैट। आई थिंक मैंने आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन का भी दिया है, लेकिन ये एक डिटेल डेफिनेशन के साथ है, सो इसमें आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। कॉमन जो है वो नाम है एक पर्सन, प्लेस और थिंग का, ठीक है, और ये जनरल कैटेगरी हो जाती है। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स और सेम टाइप ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, सारी एक जैसी चीजें जो है वो कॉमन नाउन में आ जाती हैं। सिमिलर थिंग्स, इट इज नॉट द नेम गिवन टू अ सिंगल थिंग, ये किसी एक सिंगल स्पेसिफिक थिंग का नाम नहीं होता। और कॉमन नाउन जो है वो आपका कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट होता,
आप उसको कैपिटलाइज्ड सिर्फ तब देखते हैं जब वो सेंटेंस के शुरू में आता है। एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स, बॉयज, गर्ल्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, चिल्ड्रन, tables, chairs, uncles, aunts, schools, universities, mountains, oceans, rivers, ये सारे similar things में आते हैं। इसमें आगे further जब नाम आ जाते हैं तो वो बन जाता है proper noun. Proper noun is specific, एक खास चीज का नाम. Common noun, आम चीज का नाम. इसको आप हमेशा कैपिटलाइज करते हैं, चाहे ये सेंटेंस के स्टार्ट में आए, दरमियान में आए या एंड पे आए। सो यहाँ पे जब आप एक नाउन को प्रिसाइजली नाम देते हैं, देन इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। ओके, जस्ट 1 minute प्लीज। So in verbal communication, the difference is not visible between common and proper nouns. जब आप verbal communicate करते हैं, verbally, अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ और मैं कहती हूँ अली, पाकिस्तान, जॉन, मैरी, कायदे आजम, boys, girls, schools. In verbal communication, capitalization या non capitalization, proper noun और common noun का कोई difference पता नहीं चलता। But in written form, capitalization से ही आप common और proper noun का difference करते हैं। So you have to keep in mind the difference between common and proper noun while you are writing. Just give me 1 minute. ओके, अगर इसमें आपको टॉपिक्स में कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी। तो प्रॉपर नाउन इज एन एग्जांपल। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? ओरियो, बादशाही मॉस्क, एचपी एंड फेरारी। सो ये जो हैं आपके प्रॉपर नाउन्स हैं, लेकिन इन्हीं में अगर आप बिस्किट्स कहते हैं या दैट इज जनरल। देयर आर सो मेनी कार्स ऑन द रोड, सो कार्स जो है वो आपका कॉमन नाउन है। पायलट जो है, बहुत सारे पायलट्स होते हैं, जब आप उनका स्पेसिफिकली नाम लेते हैं तो फिर वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है। काउंटेबल नाउन्स, एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड। और ये हमेशा अच्छा, ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं। अ डॉग, अ हाउस, many books, lots of apples, eggs, bananas, apples, pencils, everything that you can count is a countable noun. Uncountable noun, anything that cannot be counted is uncountable noun. Milk, soup, rice, water, hair, and there are many more things that you cannot count. Money और रुपी में जो है ये डिफरेंस थोड़ा सा देख लें। मनी जो है वो होता है आपका अनकाउंटेबल, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और रुपी जो है ये होता है काउंटेबल। मनी, आई हैव सम मनी इन माय पर्स। सम मनी, आप कभी भी नहीं कहते आई हैव मैनी मनी, आप नहीं कहेंगे, बट यू विल से आई हैव मैनी रुपीज इन माय बैंक अकाउंट, और आई हैव मैनी रुपीज, और you will say I have 50 rupees in the drawer, or you can say, but you will not say I have 50 money in my drawer or in my bag. So 50 rupees, many rupees, but some money, I have much money. So जो much, some और इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो आप अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, और रुपी के साथ आप मैनी यूज करते हैं। मैं आपको वो लिस्ट दे दूंगी जिसमें वो वर्ड्स आते हैं जो कि काउंटेबल के साथ यूज होते हैं, वो जो अनकाउंटेबल के साथ, और वो वर्ड्स जो दोनों के साथ यूज होते हैं। So there is some milk in the fridge, there are many milk in the fridge is completely wrong. अच्छा जी, all the answers are right in front of us. अच्छा जी, ये जो है ना आपकी असाइनमेंट है, इसमें आपने, ये मैं आपको इससे रिलेटेड एक और असाइनमेंट भी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। You have to pick the common nouns from the words given below, and you have to pick the proper nouns from the words given below. ठीक है, इनमें कॉमन कौन से हैं, प्रॉपर कौन से हैं, जस्ट एज एन एक्सरसाइज आपने इनको देखना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपकी कॉमन और प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो कौन कौन से।
Okay, first I'm going to give you this assignment. Discuss 2 habits that you like about yourself and 1 habit that you don't like. इसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करें और इसमें आप जो है पास्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रीवियस हैबिट है, कोई ओल्ड हैबिट है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं जो पहले थी और अब नहीं है. So you will speak on this topic for 1 minute. It can be more than 1 minute as well, but as a beginner, practicing for 1 minute is also a great thing, right? You will write a paragraph on your likes and dislikes. So please, ये 2 assignments हैं आपकी. एक आपने ये जो exercise है ये करनी है जो अभी मैंने आपको दिखाई है. मैं इसका screenshot आपको WhatsApp group में send कर दूंगी. और ये दूसरी assignment है जिसमें आपने you have to speak as well and you have to write. The reason why I would like to give you more than 1 assignments, the reason is that I want you to practice. There are very few assignments that are coming in the WhatsApp group and I don't know the reason behind that. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इन सेशंस में, कहीं आपको नहीं समझ आ रहा है, देखिए इंग्लिश बोलने का पर्पस ये है कि आपने इंग्लिश सुन के उसको समझना है. अगर आपको लग रहा है कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ और आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि मैंने उर्दू, नॉर्मली हम सेशंस में जो है वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं, बट वी डू कम्युनिकेट इन उर्दू. मैं अपने सेशंस में उर्दू में कम्युनिकेट करती हूँ ताकि स्टूडेंट्स की जो मकसद है उनका कोर्स करने का वो पूरा हो जाए, कि उनको समझ आ जाए. बोलते रहे इंग्लिश में और स्टूडेंट को कुछ समझ ना आए तो दिस इज पेनफुल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर हो रही है तो प्लीज मुझे बताएं कि आपको टॉपिक्स जो हैं वो समझ आ रहे हैं. आपको कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वो उसको हाईलाइट करें, क्योंकि अभी सेशन का स्टार्ट है और अभी हम जो अपना मेथडोलॉजी है उसको चेंज कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, राइट? सो दैट इज ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द सेशन and I'm going to see you tomorrow inshallah. अपनी assignments please complete करें, timely submit करवाएं. जो assignments हो चुकी हैं submit और वो जो अभी unchecked हैं, of course I'm going to check them for you. Okay, thank you so much Mr. Sajid that you said that you are understanding my English and it is normal speaking normal language, right? Thank you so much. It means कि आपको समझ आ रहा है, but still अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू मिक्स इंग्लिश एंड उर्दू बोथ. पर्पस हमारा यही है कि हमारी लैंग्वेज जो है इन द एंड हमारी लैंग्वेज का जो पर्पस है सीखने का वो फुलफिल हो जाए. तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू चेंज माई स्टाइल. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी. उर्दू में अंडरस्टैंड करें तो बहुत अच्छा होगा, उर्दू में समझाएं तो बहुत अच्छा होगा. आपका ये कहने का मतलब है मिस्टर तलहा, ठीक है मैं इंग्लिश में बात करती हूँ लेकिन मेरी कोशिश है कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसको उर्दू में भी साथ जो है समझा दूँ. ओके मिस्टर तलहा, आई गेट इट. ठीक है जी, हम उर्दू और इंग्लिश जो है उसको उर्दू की परसेंटेज इंक्रीज कर लेते हैं. ओके फाइन. ओके, आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अपनी असाइनमेंट्स जो हैं उसको कंप्लीट करें और व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करें. टेक वेरी गुड केयर. बाय बाय.